Good morning, everyone. Meeting after 2 days break. I hope you all are fine. सबकी तबीयत ठीक ठाक है. I am really not very impressed with your attendance. Okay, only 50% of students are attending the online classes. Why? Classes की तरह ही पढ़ा रहे हैं जब बेटा. We are teaching you in the same manner we teach you in the class. Then why are you not attending the classes? आपका सिलेबस पीछे रह जाएगा एंड यू विल गेट बर्डन अप. इतना ज़्यादा बर्डन अप हो जाएगा तब एकदम से कैसे याद करोगे, एकदम से कैसे लिख लोगे सब. सो प्लीज़ इतने रेस्टिंग फेज में मत जाओ आप लोग. ट्राई लर्निंग. ज़रूरी नहीं है, देखो हो सकता है यू माइट बी हैविंग प्रॉब्लम्स विद मोर यूसेज ऑफ फोन और टैबलेट्स और लैपटॉप्स एट योर प्लेस. आई एम नॉट सेइंग दैट कंटिन्यूसली स्टिक टू द स्क्रीन, बट डू सम पार्ट ऑफ इट. आज कुछ कर लो, कल कुछ कर लो, बट डोंट गिव योरसेल्फ सच अ लॉन्ग ब्रेक दैट सम पीपल आर कंटिन्यूअसली एब्सेंट. यू शुड नॉट डू दैट. ओके. Second thing is that regularly give your tests. Yesterday in your maths test you were having only presentees number of 20 students. Why? ये टेस्ट आपके लिए है. आप अपनी परफॉर्मेंस जज कर सकते हो that how much we are preparing well. और टीचर्स को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है that so hard working they are for you and you are not attentively organizing the classes for yourself or you are not appearing in the test. That is not good. Okay, so I humbly request you, please pay attention to your studies. Now coming to the French Revolution. अब तक की कितनी कहानियाँ आपको याद आ रही है? बहुत पीछे की कहानी नहीं देखेंगे, इससे थोड़ा सा रिकैप देखते हैं. ठीक है. 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुकी थी. अब नेशनल असेंबली इलेक्ट हुई थी जब लुई 16 ने सरेंडर कर दिया था कि ठीक है माय पावर्स विल बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन. देन अ नेशनल असेंबली वाज इलेक्टेड. हु इलेक्टेड दैट नेशनल असेंबली? Active citizens or passive citizens? Active citizens. Who were passive citizens? There were almost 3 million men, women and children below the age of 25 who did not have the right to vote. ऐसे व्यक्ति जिनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं था उन्हें क्या कहा जा रहा था? Passive citizens. और जिनको वोट डालने का राइट था वो कौन थे? Active citizens. एक्टिव सिटीजन्स कैसे बन रहे थे वो? इफ दे आर गिविंग टैक्स दैट इज इक्वल टू 3 days वेजेस ऑफ अ लेबरर. अगर वो इतना टैक्स दे रहे हैं कि जो लेबरर है वहाँ पे वो 3 दिन की अपनी जो उसकी दिहाड़ी मजदूरी है, फॉर सपोज इफ द पेमेंट इज 200 रुपीज़. ठीक है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. तो अगर वो लोग 600 टैक्स पे कर रहे हैं 3 days वेजेस, तो वो क्या है? एक्टिव सिटीजन है. he or she should be above the age of 25 and he or she should pay the tax that is equivalent to 3 days wages of a laborer. Then you are considered as active citizens, then you have the right to vote. Otherwise you don't have the right to vote. अब active citizens भी बहुत सारे थे. Were they directly electing the National Assembly? No, they were not directly electing the National Assembly. The active citizens were actually electing the electors. वो सारे एक्टिव सिटीजन्स मिलके इलेक्टर्स को वोट दे रहे थे. 50,000 इलेक्टर्स, 50,000 men. Women were not the part of electors. Okay. अब इलेक्टर्स जाके नेशनल असेंबली को चूज कर रहे थे. नेशनल असेंबली had 745 members. The National Assembly was having direct control over the king, but king was having the veto power. Okay. King was controlled by the National Assembly, ministers were controlled by the National Assembly, and the judge were chosen by the active citizens. So what does it conclude? It concludes that the power of electing people, electing their representatives came into citizens' hands. So वो क्या हो गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की पावर्स को चेक करने के लिए सिटीजन्स प्रेजेंट हैं. So king cannot take decisions according to his own wish alone. Okay? आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. फिर लेकिन लुई 16 ने क्या चीटिंग कर दी थी? उन्होंने बोल तो दिया था
that yes, I am running according to your constitution, but he actually entered into secret negotiations with Prussia, king of Prussia. Prussia भी उस टाइम पे एक country थी, but now it is part of Austria and Poland. Okay, so Prussia में क्या था कि उनके राजा के साथ उन्होंने डील कर ली. अब डील कर ली तो ये बात पता चली नेशनल असेंबली को, ठीक है. सो नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. ये सब कब हो रहा है? 1792 में, या 1792 में हो रहा है. अब ये सब वॉर जब डिक्लेयर हो गई तो मेनी पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स द आर्मी. दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द आर्मी. ये आर्मी कहाँ से आना शुरू हुई? मार्शल्स. प्लेस वाज मार्शल्स. ओके, तो मार्शल से इन लोगों ने मार्च करना शुरू किया था. तो वो एक गाना गा के, पेट्रियोटिक सॉन्ग गा के मार्च कर रहे थे. दैट वाज मार्शलेज. MARSEILLAISC, मार्शलेज. मार्शलेज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. So if the question comes that what is the name of the national anthem of France, it is Marseillaise. Okay, then Marseillaise was composed by which person? Robert de Isle. Okay, Robert de Isle was the composer of Marseillaise song. Now we are talking about the Jacobin clubs. अब 1791 के बाद भी लोगों को लग रहा था कि हमें रेवोल्यूशन से प्रॉपर रिजल्ट मिला नहीं. What we wanted the powers to be in our hand, we wanted the nobles and clergy to be equal to the third estate. ये हुआ नहीं है अभी completely. So what they wanted the revolution to be carried further. The revolution should be continued. It should not be stopped. Okay. So when they wished that revolution should be continued, what they did, they started forming political clubs. Political clubs were the places where they discussed the policies against the government. अब सब लोग मिल के एक जगह बैठ के कोई प्लान एंड आइडिया डिसाइड करेंगे तभी तो कोई रेवोल्यूशन कैरी फर्दर हो सकता है. यही हो रहा था पॉलिटिकल क्लब्स में. पॉलिटिकल क्लब्स में सब लोग मिलकर मीटिंग करते थे, अपने एक्शंस, प्लान्स, डिसीजंस को डिस्कस करते थे. ठीक है, तो ऐसे ही पॉलिटिकल क्लब्स में से एक फेमस क्लब था जैकोबिन क्लब. व्हाई वाज इट नेम्ड एज जैकोबिन क्लब? आफ्टर द नेम ऑफ सेंट जैकब. सेंट जैकब वाज अ चर्च प्लेस. इट वाज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्लेस. जैसे हम लोग मंदिर के नाम पे, मान लो वैष्णो देवी मंदिर है हमारे भारत में, उनके नाम पे अगर हम कोई वैष्णो पार्टी बना दे, वैष्णो क्लब बना दे, ऐसे ही सेंट जेकब के नाम पे वहां पे क्या बनाया गया? जैकोबिन क्लब्स. अब ये जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, इनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. Maximilian Robespierre was the leader of Jacobin club. This is very important point and very important question of this chapter. That who was the leader that led the Jacobin club? Maximilian Robespierre. Robespierre क्योंकि अब आगे जाके राजा भी बनने वाले हैं. He is going to be the elected leader. So इनका नाम आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Maximilian Robespierre was the leader of Jacobin clubs. जैकोबिन क्लब्स के बारे में ध्यान से समझना, क्योंकि आगे जाके इन्हीं की सरकार आने वाली है. थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे देनी चाहिए भाई, आगे जाके बड़े लोग बनने वाले हैं, इन्हें भूलो मत. ठीक है. सो व्हाट दे वोर, अब ये कैसे कपड़े पहनते थे वो भी हमें डिस्कस करने पड़ेंगे. अब आप लोग सोच रहे होंगे हिस्ट्री में क्या क्या डिस्कस करना पड़ता है, इन्होंने कैसे कपड़े पहने, उससे हमें क्या, है ना. सोचते तो होंगे, हम लोग जो बच्चे थे हम भी सोचते थे कि किसी ने महाराणा प्रताप ने तब जाके किसी को मार दिया, हमें क्यों पढ़ा रहे हो. बट लेट मी टेल यू, हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग. यू हैव टू जस्ट टेक द इंटरेस्ट इन. ठीक है, आपको मन लगा के पढ़ना है, स्टोरी की तरह समझना है. स्टोरी की तरह समझते रहो, अरे लुईस 16 ये कर रहा था, फ्रांस के पीपल देखो कितने परेशान थे. क्योंकि जब कोई भी इंसान अपने फ्यूचर को तब तक बहुत बेटर नहीं बना सकता जब तक अपने हिस्ट्री के एक्सपीरियंस से नहीं सीखता. इसलिए लर्निंग हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में हो रहा था. इट वाज गिविंग पावर टू द फ्रांस सिटीजंस, बट ये इंस्पिरेशन और जगह के लोगों के लिए भी था. इवन इंडिया वाज एट दैट टाइम इंस्पायरिंग द पावर फ्रॉम दैट कंट्री. उस टाइम पे राम मोहन रॉय इंडिया में बैठ के फ्रांस रेवोल्यूशन को बहुत
ज़्यादा इंस्पिरेशन मान रहे थे, एंड ही वांटेड अस टू लर्न फ्रॉम देम। सो दूसरों की हिस्ट्री से सीखना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। अगर आज एक राजा की पावर आ जाए आपके हाथ में, तो क्या आप उसे रिमूव करना चाहिए आपको? बिल्कुल, आप सीखिए अपनी हिस्ट्री से, ठीक है। सो डोंट क्रैम्प अप द थिंग्स, रटना नहीं है, डरना नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। चलो, अब क्या पहनते थे वो डिस्कस करते हैं। पैंट पहनते थे। आपकी बुक में एक पिक्चर दिया गया, फिगर दिया गया, that they wore the trousers that had long strips in it. Long stripped trouser. Suppose this is the trouser, plazo type का बन गया, okay? But suppose this is the trouser, so it had this kind of design. Long stripped trouser were worn. तो अगर आपसे इनकी यूनिफॉर्म पूछ ली जाए तो क्या क्या पहनते थे? लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे, विदाउट नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस घुटने पे बांधने की एक ऐसी ब्रीच होती थी, एक ऐसा कपड़ा होता था जो कि नॉबल्स बांधते थे एट देयर नीज। तो ये लोग तो नॉबल्स के अगेंस्ट हैं, नॉबल्स के अगेंस्ट पॉलिसीज डिसीजंस हैं इनके सारे, तो क्या ये नी ब्रीचेस बांधेंगे? नहीं बांधेंगे। सो व्हाट दे वोर? लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स विदाउट नी ब्रीचेस। तो जो विदाउट नी ब्रीचेस इन ट्राउजर्स को पहनते थे उनको बोला जाता था सैंस्कुलेटिस। सैंस्कुलेटिस, ओके। सैंस्कुलेटिस अगर आपसे पूछा जाए क्या है, इट मींस विदाउट नी ब्रीचेस, ट्राउजर्स विदाउट नी ब्रीचेस, क्योंकि ये वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैकोबिन क्लब्स में कौन थे? वर्कर्स थे, आर्टिसंस थे, शू मेकर्स थे, वॉच मेकर्स थे, पॉटर्स थे। The very poor third estate members were present or were the part of Jacobin clubs. So ये लोग नॉबल्स के तरीके से तो ड्रेस्ड अप होंगे नहीं, इससे तो इनकी पार्टी की वैल्यू कम हो जाएगी। They were dressing against the pattern of nobles. Nobles नी ब्रीचेस लगाते थे, तो ये विदाउट नी ब्रीचेस, और जो विदाउट नी ब्रीचेस ट्राउजर्स पहनते हैं उनको क्या बोला गया? सैंस्कुलेटिस, ठीक है। ये रेड कैप भी पहनते थे। तो जब हमने सिंबल पढ़े थे कुछ, हमने सिंबल, आपको 3 सिंबल फिर से रिवाइज करा देते हो। वी एक्चुअली लर्न द सिंबल ऑफ अ लॉ टैबलेट, पत्थर पे कानून लिखे हुए थे। व्हाट दैट इट सिंबलाइज्ड? दैट लॉ आर इक्वल फॉर ऑल। वी हैव लर्न 3 नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, रेड ब्लू ग्रीन, ओके, दीज वर नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। एंड वी एक्चुअली हैव सॉ अ बंडल ऑफ स्टिक्स दैट सिंबलाइज्ड यूनिटी, कि आप हमें तोड़ नहीं सकते। तो ऐसे ही रेड कैप पहनते थे। रेड कैप सिंबलाइज लिबर्टी। लिबर्टी होती है व्हेन यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू विश टू। आपके जो मन में आता है, जब आपको वो करने की इच्छा है, दैट इज लिबर्टी। इट शुड नॉट हार्म अदर्स एक्चुअली। दूसरों को नुकसान पहुंचा के अगर कुछ कर रहे हो और बोलो ये तो हमारी लिबर्टी है, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। But this is the actual definition of liberty, that if you get to do whatever you wish to do, जब आपको वो करने की इजाजत हो, उसे बोला जाता है लिबर्टी, आजादी, सॉरी। तो वो किससे सिंबलाइज हो रही थी? रेड कैप्स। सो हमने 3 चीजें देखी हैं, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे, विदाउट नी ब्रीचेस पहनते थे, एंड रेड कैप पहनते थे। क्लियर? अब जैकोबिन क्लब्स में जो ये मेंबर्स थे, जो ये नी ब्रीचेस पहनते थे, रेड कैप पहनते थे, ये सब विमेन को अलाउड नहीं था। ओके, विमेन को अलाउड नहीं था ये सब कुछ। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। अब समर्स आ गया है 1792 का, गर्मियां आ गई हैं, ठीक है। 1792 में आने के बाद क्या किया? पेरिस के जो लोग थे, जिन्हें बोला जा रहा है पैरिसियंस, उनके अंदर बहुत गुस्सा था कि ब्रेड का प्राइस इतना ज्यादा क्यों है। They were in very anger. अब नेशनल असेंबली इतना अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, थोड़ा पेशेंस रखो, बट स्टिल they were angered with the short supplies of bread. We are not getting food on time. We are not getting the food at proper prices. तो उन्होंने क्या सोचा? अब ये जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब्स के, इन्होंने क्या सोचा? इंसरेक्शन ऑफ पैरिसियंस। इंसरेक्शन क्या होता है? वायलेंट एक्शन लेना। They wanted a violent action against the Parisians. That shut your mouth. We are working towards it. Okay. They wanted the insurrection of Parisians. Paris के लोगों को के अगेंस्ट ये लोग violent action करना चाहते थे।
अगस्त 10 आ गई, गर्मियों के बाद 10 अगस्त को आ जाओ, ये भी 10 अगस्त 1792 की ही बात हो रही है। पैलेस ऑफ ट्यूलरीज वर अटैक्ड। ट्यूलरीज इज अ प्लेस और इज अ सिटी इन पेरिस, ठीक है, पेरिस में ही ये पैलेस था जहाँ पे पहले हमने पढ़ा कि पैलेस ऑफ वर्सलेस में रह रहे थे लुइस 16, नाउ ही शिफ्टेड टू पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। यहाँ पे ये रॉयल फैमिली रह रही थी, लुइस 16 और मैरी एंटोइनेट थी, इनको अरेस्ट कर लिया गया। आप ना तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, हमें ना तो प्रॉपर पावर्स दे रहे हो, सीक्रेटली किसी भी राजा के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हो, हाउ बैड ऑफ यू, यू आर अ चीटर। तो उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। द होल ऑफ द रॉयल फैमिली, दैट मीन्स लुइस 16, उनकी वाइफ मैरी एंटोइनेट, इन सबको क्या कर लिया गया, अरेस्ट करके जेल भेज। अब क्या होंगे, इलेक्शंस, क्योंकि जो मोनार्की थी, मोनार्की का मतलब क्या बताया था, द हेड ऑफ द स्टेट और द पावर ऑफ द हेड रेस्टेड विद किंग और क्वीन, उसे बोलते हैं मोनार्की। तो अब मोनार्की को, जो मोनार्क का हेड था उसे ही अरेस्ट कर लिया, तो इलेक्शंस तो होने बनते हैं ना भाई, तो इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस जो होंगे इलेक्शंस होने के बाद नई नेशनल असेंबली इलेक्ट हुई, इसे बोला गया कन्वेंशन। Convention was the name of newly elected assembly. So, if in a MCQ it is being asked from you that what was the name of the new national assembly that was elected after 1792 or that was elected after arresting Louis 16, तो नई नेशनल असेंबली जो बनी थी उसका क्या नाम था, कन्वेंशन। नई नेशनल असेंबली जो कि लुइस 16 के अरेस्ट होने के बाद बनी, जिसमें मोनार्की को हटाया जाना था, उस असेंबली का नाम क्या था, कन्वेंशन। एंड व्हाट वाज द डेट, द डेट वाज 21 सितंबर 1792। 21 सितंबर 1792 को जो फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, वो मोनार्की से रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट वो होंगे जिनको हम चूज करेंगे। हेड ऑफ द स्टेट विल बी एन इलेक्टेड पर्सन, उसे बोला जाता है रिपब्लिक कंट्री। जैसे हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं हमारे प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। सो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं। ऐसे ही जब हेड ऑफ द स्टेट कहीं पे भी इलेक्टेड हों, उन्हें बोला जाता है रिपब्लिक। सो ये पूरी जर्नी थी फ्रांस की मोनार्की से रिपब्लिक की तरफ। और फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब बना था, 1791, और रिपब्लिक कब बन गया, 21 सितंबर 1792। क्लियर? फटाफट 5 सेकंड में बोर्ड देख लो, विल मूव फॉरवर्ड। I hope all the parts that we have discussed today is clear to you. Okay, I must appreciate we have a student in our class. Her name is Diksha. Okay, she continuously asks doubts. वो लेक्चर को इतना ध्यान से सुनती है, उसके बाद अगर उसे कोई डाउट होता है, शी आस्क्स इट वेरी फ्रीक्वेंटली। दीक्षा, यू आर वर्किंग रियली वेल एंड दैट शुड बी अप्रिशिएटेड, दैट यू डोंट लेट आवर एफर्ट्स गो वेस्ट। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप बाकी के बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, बट अगर
कोई आप लोग डाउट्स पूछते हो तो अच्छा लगता है, दैट यू आर अटेंटिव, यू आर लर्निंग, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। इलेक्शंस हो गए, अरेस्ट हो चुके थे लुईस 16 और उनकी फैमिली। अब अरेस्ट किस बात पे हुए थे? चार्ज ऑफ ट्रिजन। व्हाट इज ट्रिजन? व्हेन यू आर हैविंग द ब्लेम, जब आप पे ये आरोप लगाया जाए दैट यू आर गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, you are going against the actions of government, that is known as treason। जब आप जो भी इलेक्टेड सरकार है आपके एरिया में उसके अगेंस्ट काम करते हो, लोगों के मन में उसके अगेंस्ट हेट्रेड लाते हो, दैट इज ट्रिजन। वही उन्होंने किया था जब वो सीक्रेटली गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके he was entering in secret negotiations with Prussia, यही तो कर रहे थे। तो उन पे चार्ज क्या लगाया? ट्रिजन का। कोर्ट में उनको सजा हुई एंड देन फाइनली इन 1793 he was executed publicly। What does this mean? That he was made to die। उनको मरने की जो सजा दी गई वो पब्लिकली सबके सामने दी गई थी। At which place? De la Concorde। इस जगह का नाम याद रखना, de la Concorde। अगर आपसे पूछा जाए क्या है, it is the name of the place where Louis 16 was executed publicly। जहाँ पे लुईस 16 को मरने की सजा दी गई पूरी जनता के सामने, that place was de la Concorde। लुईस 16 को एग्जीक्यूट कब किया गया पब्लिकली? 1793, ठीक है। तब तक उन पे केस चलता रहा, केस में उन्हें दोषी पाया गया, उनके सारे इल्ज़ाम सामने आ गए, उनकी सारी सीवियर पॉलिसीज जिससे उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था वो सामने आ गई और फाइनली 1793 में उन्हें मरने की सजा दी गई। अब आप पूछोगे उनकी वाइफ के साथ भी ये हुआ? यस, शी मेट विद द सेम फेट। उनकी किस्मत में भी यही था। वेरी शॉर्टली, कुछ दिनों बाद ही उन्हें भी पब्लिकली ही एग्जीक्यूट किया गया। अब जो फ्रांस के हेड हो गए थे, रिपब्लिक हेड, ही वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। हमने देखा था जैकोबिन क्लब के हेड वही थे, तो वही लीडर बने रिपब्लिक के। इलेक्शंस हुए, कन्वेंशन आई, द नेशनल असेंबली, एंड द लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब रॉबेस्पियर ने अच्छा काम किया या नहीं वो देखो। रॉबेस्पियर की एक बात बताती हूँ, इनका जो काम करने का टेन्योर था 1793 से लेके 1794, दिस वाज टर्म्ड एज रेन ऑफ टेरर। What is meant by reign? Reign is the time period or the time span। ये पूरा जो टाइम था एक साल का, इसको टेरर का टाइम बोला गया। इतना ज़्यादा आतंकवादी माहौल हो गया था वहाँ पे। कैसे हो गया था? इन्होंने इतनी सिवियर पॉलिसीज ला दी, इतना गुस्सा भरा हुआ था इनके अंदर अगेंस्ट द नोबल्स एंड क्लर्जीज। ये क्या करते थे? ऑल द नोबल्स एंड क्लर्जीज जो पहले थे, अब तो वो नहीं रहे थे नोबल्स एंड क्लर्जीज, अब सोसाइटी वाज इक्वल। सो ये क्या कर रहे थे कि जितने भी नोबल्स एंड क्लर्जीज थे उनके खिलाफ केस करते थे। जैसे ही पता चला कि वो मेरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, उन्हें इम्प्रिजन कर देते थे, जेल में डाल देते थे। जेल में डालने के बाद उनके खिलाफ एक रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल थी। रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल क्या होती है? व्हेन 4 or 5 judges are sitting together for taking one decision। जब benches बैठती हैं for taking one decision of the judges, that is known as tribunal। Tribunal are formed for certain purpose। जज और कोर्ट्स तो हमेशा रहते हैं जुडिशरी, ट्रिब्यूनल किसी मकसद से बनाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे रिवर वाटर ट्रिब्यूनल है, तो रिवर के वाटर पे अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो दैट ट्रिब्यूनल विल टेक एक्शन। तो ऐसे ही रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल बनाए गए
ये ट्रिब्यूनल क्या करती थी, इन नोबल्स एंड क्लर्जीज पे केस लड़ती थी। ये देखती थी इन्होंने क्या क्या किया इन द पास्ट, इनके पाप चिट्ठे सारे खोलती थी, और अगर ये चार्ज हुए, अगर इन्होंने गलती की थी तो इनको क्या कर दिया जाता था, इम्प्रिजन एंड देन गिलेटिन। अब आप पूछोगे गिलेटिन क्या है? देयर वर 2 poles and then a blade in between। पोल्स के बीच में ब्लेड होती थी, ये चलती रहती थी, और जिस इंसान को सजा देनी है ना, उसका सर ब्लेड पे रख देते थे ताकि वो हेड बॉडी से अलग हो जाता था। ऐसे सजा दी जा रही थी। फांसी में तो आपके गले में आपकी सांसें रोक दी जाती हैं, यहाँ पे क्या हो रहा था, गर्दन ही अलग कर देते थे। 2 poles and then a blade between it, this blade was rotating and the person who is to be punished, he was bent, his head was bent over the blade and he was beheaded। उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती थी। इसका इस प्रोसीजर का नाम गिलेटिन क्यों था? Because this invention, this process was invented by Dr. Guillotine। डॉक्टर गिलेटिन जो थे उन्होंने ये पूरा सिस्टम बनाया था, द पोल्स एंड द ब्लेड, सो इसलिए इसको क्या बोला जाता था, प्रोसेस को गिलेटिन। तो रॉबेस्पियर क्या कर रहे थे, ही वाज फॉलोइंग वेरी सीवियर पॉलिसीज, बहुत ज़्यादा टेररिज्म ले आए थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, हेट्रेड ले आए थे कि जितने नोबल्स एंड क्लर्जीज हैं इनको पकड़ो, इम्प्रिजन करो एंड देन मेक देम गिलेटिन। रॉबेस्पियर ने एक और चीज़ करी कि फिक्स्ड प्राइजेस of grains, मैक्सिमम सीलिंग लगा दी उन्होंने। इससे ज्यादा रेट पे तुम फार्मर्स, तुम किसान अपने ग्रेन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इतना ही रेट होना चाहिए इनका। एक मैक्सिमम सीलिंग लगा दे, जैसे अब गवर्नमेंट लगा देती है फिक्स प्राइस ग्रेन्स पे कि इस प्राइस पे गवर्नमेंट आपसे ये खरीदेगी, बट अगर बाहर आपसे कोई महंगे में खरीदना चाहता है तो आप दे सकते हैं। लेकिन रॉबेस्पियर क्या कर रहे थे, इन्होंने एक मैक्सिमम सीलिंग लगा दी, इससे ज़्यादा आप अपना स्टॉक करके ग्रेन के प्राइस को नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज प्राइस ऑफ द फूड और प्राइस ऑफ द ग्रेन वाज द मेन प्रॉब्लम इन दैट सिटी। दैट यही तो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी उस टाइम पे कि लोगों को फूड नहीं मिल रहा था, वेजेस इतनी लो थी, फूड का प्राइस ज़्यादा था। सो इसी प्रॉब्लम को कंकर करने के लिए उन्होंने क्या किया, ही फिक्स्ड द प्राइसेस ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, मैक्सिमम सीलिंग लगा दी, आपको जरूरी है आप पूरा ग्रेन ट्रांसपोर्ट करोगे, सरकार को दोगे, लेकिन एक फिक्स्ड प्राइस। ठीक है, रॉबेस्पियर के राज में इक्वालिटी आ गई थी फ्रेंच सोसाइटी में। पहले मैडम बोला जाता था, मैडम को, सर को बोला जाता था मॉन्सियर। जब भी किसी मैम को आपको टर्म करना था, द नेम वाज टर्म्ड एज मैडम। And if you had to consider any sir or any male person, he was termed as monsieur. But now everyone was termed as citoyen। citoyen का क्या मतलब था, citizen। So the common word was citoyen। कोई मैडम, कोई सर नहीं है, सब सिटीजन है। अब इतनी ज़्यादा सीवियर पॉलिसीज रहेंगी तो क्या देश की सरकार, देश के लोग चाहेंगे कि ये भी हेड रहें? लुईस 16 को भी तो इसीलिए हटाया था क्योंकि सीवियर पॉलिसीज नहीं चाहिए थी। तो क्या रॉबेस्पियर पसंद आ जाएंगे उन्हें? नहीं। 1794 में इनको ही गिलेटिन कर दिया गया, इन्हीं को पहले जेल में डाला, एंड इन 1794 रॉबेस्पियर वाज किल्ड विद द प्रोसेस ऑफ गिलेटिन। ठीक है, रॉबेस्पियर का टेरर यहाँ तक खत्म होगा। अब कल हम लोग फ्रांस की आगे की स्टोरी देखेंगे। होपफुली कल के लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग यू द नोट्स, कॉपी देम, वीडियो को ध्यान से समझो, कोई डाउट है तो पूछ लो। हैव अ गुड डे।